Good morning friends, welcome to my biology class. Today we are going to see the next topic, spermatogenesis. In the process of spermatogenesis, we are going to see how the sperms are produced. Before that, we have to know that the process of spermatogenesis comes under the process of gametogenesis. So what is the meaning of the gametogenesis? Gametogenesis. Gameto means the gametes and genes means the formation. In human being, there are two type of gametes are produced. One is the one is the egg and another one is the sperms. These both gametes are produced by the primary sex organ. In male, the sperms are produced by the testis, and in the female, eggs are produced by the ovary. Testis and ovary both are the primary sex organ, and that process is called as the gametogenesis. So understand students, what is gametogenesis? Gametogenesis means production of the sperms and egg from the testis and the ovary respectively are called the gametogenesis, and the production of the sperm is called spermatogenesis. What is spermatogenesis? Production of sperm. So the sperm process of production of sperm start at the age of the puberty. So puberty means the age between 14 to 13 years are called as the puberty age. At that time, in the male, the process of production of sperms is start by the influence of the hormone androgen, which is secreted inside the testis. Okay, अब हम देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस की वो कैसे होती है टेस्टिस के अंदर। हम लोगों ने उस दिन देखा था कि टेस्टिस जो है, टेस्टिस इज कवर्ड बाय द 3 लेयर. इनर लेयर ऑफ द टेस्टिस इज नोन एज द germinal epithelium. It is the germinal epithelium, and the cells of that germinal epithelium are called germ cell. Germinal epithelium, and it is germ cell. That germ cell undergoes the process of mitosis. Germ cell undergoes the process of mitosis, by which it multiplies to produce many cells, and that many cells are called as the spermatogonia, which is a diploid in nature. It is spermatogonia. Okay, this spermatogonia undergoes the increase in size by adding the many material, adding the cytoplasmic material, nutritious material in that cell. That phase is called as the growth phase, because this process takes place inside the 3 phases. First phase is the multiplication phase, and the formation of the spermatogonia from the germ cell by the process of the mitosis is called the multiplication phase. And now the spermatogonia increases in size. But having diploid nucleus, not the reduction number of the cytoplasm is takes place here. Only size is increases, and it is called as primary spermatocyte. This process is called as the primary spermatocyte, and this phase is called as the growth phase. Now, in the primary spermatocyte, first meiosis takes place, which is equal. After the meiosis 1,
डिप्लॉयड इन नेचर। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा है? हैप्लॉयड इन नेचर। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अगेन मियोसिस 2 होगा और कितने सेल प्रोड्यूस होंगे अभी? 4। All are haploid in nature because it is produced by the process of the meiosis 2. Okay, and these all 4 cells are now called as the spermatid. Is called as the spermatid. अंडरस्टैंड? क्या कर देखा हमने? ये जर्मानल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनिया बना। स्पर्मेटोगोनिया बाय द मल्टीप्लिकेशन फेज, बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ फेज से बना, लार्ज हुआ, साइज में इंक्रीज हुआ। देन ये जो फेज है, जिस फेज से स्पर्मेटिड बना है, इट इज कॉल्ड एज द मैचुरेशन फेज। इट इज कॉल्ड एज द मैचुरेशन फेज। ओके, और मैचुरेशन फेज से क्या बना है? स्पर्मेटिड। ठीक है, बट ये जो यहाँ तक की जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, इट इज नॉट होल प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, इट इज ओनली हाफ प्रोसेस। देन इसके आगे जो है इसको शेप मिलेगा, क्योंकि ये जो स्पर्मेटिड है इसमें कोई टेल नहीं है, तो ये नॉन मोटाइल है। और आपको पता है कि मेल गमीट जो है वो मोटाइल होता है और ये हेवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, आगे अनदर सेल ऑर्गेनेल सब भरे पड़े हैं। सो इसको अपना शेप चेंज करना पड़ेगा एंड दैट प्रोसेस formation of the sperm from the spermatid are called as the spermiogenesis. कौन सी प्रोसेस है वो? spermiogenesis, जिस प्रोसेस से ये स्पर्मेटिड जो है स्पर्म में चेंज होते हैं। सो हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। What is spermiogenesis? Formation of sperm from spermatid is called spermiogenesis. इसमें क्या होगा? इसमें जो स्पर्मेटिड का साइज है वो डिक्रीज होगा और इसका शेप जो है वो चेंज होगा। सो स्पर्म जो है इस तरह से स्पून शेप का बनेगा फ्रॉम स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड कैसे था? ऐसे राउंड था और हैप्लॉइड था। नंबर ऑफ द क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसका साइज एंड शेप में चेंजेस आएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है? जब स्पर्म बनता है तब इसके हेड में यहाँ पर जो एक्रोसोम है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं और इसको बोलते हैं एक्रोसोम। ठीक है, हेड में क्या हुआ? गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक्यूमुलेट हुआ और वो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं अभी? एक्रोसोम। न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर एट द हेड के नीचे रहेगा, लाइक दैट। सबसे बड़ा कौन रहेगा यहाँ पर? न्यूक्लियस, हेड के नीचे। न्यूक्लियस के नीचे यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे सेंट्रियोल। ये क्या है? सेंट्रियोल। 2 सेंट्रियोल है यहाँ पर। ये जो है इट इज प्राइमरी सेंट्रियोल और प्रॉक्सिमल, और ये सेकेंडरी सेंट्रियोल और डिस्टल। ठीक है, इसके नीचे अरेंज होगी माइटोकॉन्ड्रिया।
जो कि कहलाएगी मिडल पीस। क्या अरेंज हुआ इसके नीचे? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हमने क्या कहा? मिडल पीस। जहां पर सेंट्रियोल अरेंज हुआ उसे कहेंगे नेक ऑफ द स्पर्म, और जहां पर न्यूक्लियस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स अरेंज हुए उसे कहेंगे हेड ऑफ द स्पर्म। और ये जो डिस्टल सेंट्रियोल था, ये डिस्टल सेंट्रियोल पूरा नीचे एक्सटेंड हो जाता है और बनाता है टेल ऑफ द स्पर्म। तो टेल ऑफ द स्पर्म किसने बनाया? डिस्टल सेंट्रियोल ने बनाया, उसके एक्सिलरी फिलामेंट ने बनाया। ये क्या है? एक्सिलरी फिलामेंट, जिससे बनी है टेल। टेल गिव्स द मूवमेंट टू द स्पर्म, इसको स्पर्म को फीमेल वजाइना में स्विम होने के लिए हेल्प करता है। कौन? टेल। ओके, और ये प्राइमरी सेंट्रियोल क्या हेल्प करेगा? इसका बहुत ही एक अहम रोल है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फीमेल के एग में सेंट्रियोल नहीं होता, जिसके कारण उसका जो मियोसिस है वो रुक जाता है। ठीक है, क्लीवेज उसका रुक जाता है। जब ये प्राइमरी सेंट्रियोल स्पर्म का हेड जब एग में एंट्री करेगा, तब वो जो मियोसिस है वो कंटिन्यू होगा और फिर एग डिवाइड होगा। इस तरह से एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये प्राइमरी सेंट्रियोल जो है वो डोनेट किया जाता है फ्रॉम स्पर्म टू एग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है नीट में। ओके, आपको ये प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस समझ में आया? और आज का पूरा जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा? स्पर्मेटोजेनेसिस, वो भी समझ में आया? ओके, अभी हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस पूरी हुई है इसके लिए कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। मैंने जस्ट वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्यूबर्टी में एंड्रोजन रिलीज होता है। अब ये जो एंड्रोजन है इसको कौन रिलीज करता है? लेडिक सेल्स, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि लेडिक सेल्स क्या होती है? लेडिक सेल्स यानी इंटरस्टिशियल सेल। जब मेल में प्यूबर्टी होती है उस समय मेल में हाइपोथैलेमस जीएनआरएच सीक्रेट करती है। जीएनआरएच किसने सीक्रेट किया? हाइपोथैलेमस ने। और ये जो जीएनआरएच है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टिमुलेट करती है मेल के। किसे स्टिमुलेट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी ने सीक्रेट किया एलएच। मेल में एलएच को ही कहा जाता है आरसीएसएच, इसका मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे बोला जाता है एलएच को। अब ये जो एलएच है ये स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल को। ठीक है, और ये लेडिक सेल जो है ये सीक्रेट करता है एंड्रोजन। और एक हार्मोन सीक्रेट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी, एफएसएच। एफएसएच जो है ये स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को। और सर्टोली सेल एक हार्मोन सीक्रेट करती है। ठीक है, और उस हार्मोन के वजह से वो हेल्प करती है, सीक्रेट सम फैक्टर दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। इट सीक्रेट्स अगेन प्रोटीन that is called as the inhibin। ये और क्या सीक्रेट करती है? एक प्रोटीन सीक्रेट करती है जिसको कहा जाता है इनहिबिन। ये इनहिबिन जो है ये फीडबैक मैकेनिज्म देता है। ठीक है, कब देता है ये फीडबैक मैकेनिज्म? जब बहुत ज़्यादा एंड्रोजन सीक्रेशन हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा स्पर्म प्रोडक्शन हो जाते हैं, तब ये जो इनहिबिन है ये फीडबैक मैकेनिज्म देता है और बोलता है कि अभी स्टॉप करो, बहुत स्पर्म प्रोडक्शन हो गया है। ओके, इस तरह से मेल में हार्मोनल